Students, you're watching your teacher Mr. Arjun Rai. This is my another video for class 7 from same lesson. Lesson number 3. What's your water footprint? Okay, it is telling us about how do we conserve the water for the days, and how do we use the water and with saving for the future days. That this all things has mentioned here. And last day I just have to finish my topic with telling you the recycle of water. Actually, recycle of water, you know very well. The used wastewater have to be recycled and make it usable. This is called a recycle process. Okay, recycle process मतलब इन हिंदी चलाया हुआ वास्ट वाटर को किस प्रकार से फिर चलाने योग्य बनाना, उसी को रिसाइकल कहते हैं। और ये प्रोसेस अभी चारों ओर चलता ही है। तो one more thing I have to tell you, which yesterday I didn't tell you, so I'm just going to tell you now. Okay, the concept of water's footprint is introduced by the person Arjun Y. Hofstra in the year 2002. Actually, he is one of the researcher about water conserving and water saving, and he is mentioned how do we use our water directly and indirectly for our daily life. And by this uses of water, he introduced the concept of water footprint as well as water saving theory also. Okay, and according to water footprint, it is mentioned here there are water footprint is consist of 3 components. Okay, it is mentioned here in our book water footprint consists of 3 components. The 3 components are as like, according to the concept of water, 3 water components. One is blue water. Blue water is categorized as water in lakes, river and aquifers. Okay, and the companies and industries as well as some of the villagers, for farmers also use the water directly from this area, and this is called blue water. And the second one is, it is green water. It is actually stored during the rainfall season, and it is collected, it consists with the soil, and it is used through wells and ponds, you know very well now, wells and pumps, and which also usable for our daily life. This is green water. Okay, and number third, it is gray water. Gray water, it is already used water. It is actually called polluted water. Here it is mentioned here, the gray water as a polluted water. And how do we recycle and usable such kind of polluted water? It is also mentioned here, because sometime we need this stage we must have get the polluted water throughout the world, because the quantity, the percentage of amount fresh water is quite lesser than the amount of dirty water here. So water cycle should be necessary. And the third one, gray water, it is a polluted water, and it should be recycled and make it usable. It is all mentioned here, 3 types of components of water footprints. And in the next step, it is mentioned here how to reduce water footprint. Actually, it is telling us कि हम कैसे पानी के इस्तेमाल को हम कम कर सकते हैं. तो there are many things by which we can reduce the uses of water. Number 1, instead of water saving toilet and showers. Number 1, ये चारों ओर सभी को टॉयलेट और शावर तो चाहिए, तो यहाँ ऐसे हमें टॉयलेट या शावर का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे थोड़ा पानी बच सके. और उसके बाद नंबर 2, ये सभी को पता ही है, जब हम हाथ धोते हैं या ब्रश करते हैं या शेविंग करते, तब शेविंग करते वक्त या ब्रश करते वक्त हमें कंटिन्यूसली पानी को खोल के नहीं रखना है. इसको टैप को बंद करके शेविंग या ब्रश करना है. तो ये दूसरा तरीका है जिसके मार्फत हम अब पानी बचा सकते हैं.
और नंबर थर्ड में रिसाइकल किया गया पानी ज़्यादातर गार्डन में इस्तेमाल कीजिए। फ्रेश वाटर की जगह अगर हम रिसाइकल वाटर को गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारा फ्रेश वाटर बच सकता है। और नंबर फोर में इट इज़ मेंशन हियर हार्वेस्टेड रेनफॉल, मतलब जो आसमान से जो बारिश होता है, बारिश के पानी को हम किस प्रकार से स्टोर करते हैं, और वही स्टोर किया हुआ पानी अगर कोई कुछ ऐसे कामों पर लगाएंगे तो इसके चलते हम फ्रेश वाटर को सेव कर सकते हैं, जैसे गाड़ी धोते वक्त या बाइक धोते वक्त या गार्डनिंग के लिए, या हो सके तो खेती के लिए भी हम अगर स्टोर किया हुआ पानी को इस्तेमाल करेंगे तो इसके चलते हमारा फ्रेश वाटर बच सकता है, रिड्यूस हम बचा सकते हैं, और इसके चलते हम वाटर फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें और भी है जिसमें हम फ्रेश वाटर के जगह रिसाइकल वाटर अथवा हार्वेस्ट वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके चलते हम फ्रेश वाटर को बचा सकते हैं। Here's one more question asking you, how can we reduce our water footprint? तो पानी को हम कैसे और बचत कर सकते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा चीज लिखा गया है, एक पैराग्राफ, तो यहाँ बता रही है, इट इज टेलिंग अस अबाउट इनडायरेक्ट फुटप्रिंट, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ फुटप्रिंट। एक डायरेक्ट फुटप्रिंट मतलब हम पानी पीते हैं, चलाते हैं, बर्तन साफ करने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए, दिस इज डायरेक्ट फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट। एंड इनडायरेक्ट वाटर फुटप्रिंट मतलब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो प्रोडक्ट बनने के लिए भी तो पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को हम खरीदते हैं तो ये है हमारा इनडायरेक्ट वाटर फुटप्रिंट, क्योंकि ये भी वो जो भी हम चीज़ खरीदते हैं उसको भी बनाते वक्त पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ एक और चीज़ इनडायरेक्ट वाटर फुटप्रिंट के बारे में बताया है। तो यहाँ अगर हमें इनडायरेक्ट वाटर फुटप्रिंट को बचाना है तो हमें उन प्रोडक्ट को खरीदना है जो बनते वक्त उसमें पानी का इस्तेमाल कम किया हो, और जिसको हम चलाते वक्त पानी का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके चलते हैं, ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और फिर भी अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम दैनिक इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसको साफ़ करने के लिए पानी का ज़्यादा मात्रा ज़रूरत नहीं पड़ता। तो हमें ज़्यादातर ऐसे चीज़ों को खरीदना पड़ेगा जिसके चलते हम फ्रेश वाटर को बचा सकते हैं। तो उसके बाद देखो, और हियर इज आस्किंग अबाउट जो हम अनाज उगाते हैं, फल फूल उगाते हैं या सब्जियां उगाते हैं, तो क्या ये भी वाटर कंजप्शन में वाटर फुटप्रिंट का एक हिस्सा है? वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली देखा जाए तो है, क्योंकि कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए पानी का होना सबसे ज़रूरत होता है, सबसे अहम होता है। तो इसके चलते वैसे यहाँ भूमिका निभाता है वाटर फुटप्रिंट ऑल्सो। लेकिन यहाँ हम फ्रेश वाटर का इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि यहाँ हम वास्ट वाटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टोर वाटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ बात हो रहा है ज़्यादातर फ्रेश वाटर की बचाने की ना। तो फ्रेश वाटर जैसे कल्टीवेशन में उतना ज़्यादा लगता नहीं, बस उसको धोते वक्त हम फ्रेश वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो लिखा है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। वन मोर थिंग इज आस्किंग हियर कि वाटर फुटप्रिंट का जो नेटवर्क है ये अपने लिविंग स्टाइल और लोकेशन के हिसाब से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जहाँ जिस जगह फ्रेश वाटर कम है वहाँ उसी प्रकार से रहते हैं, और जिस जगह जहाँ फ्रेश वाटर ज़्यादा है वहाँ के लोग ज़्यादा ही पानी का फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करते हैं। और उन जगहों पर ज़्यादातर वाटर फुटप्रिंट यानी वाटर कंजर्वेशन का एक प्रोसेस होना ज़रूरी है। और ये हमारे देश में चारों ओर ऐसा ही है, तो कहीं जगह पानी बहुत कम है, फ्रेश वाटर बहुत कम है, तो वहाँ के लोग उसी प्रकार से अपना ज़िंदगी जीते हैं। और ऐसे बहुत से जगह जहाँ पानी लोग लैविशली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते आगे फ्रेश वाटर मिलना मुश्किल हो सकता है।
Here in the next paragraph is telling about asking us about कि हम इंडिविजुअल कितना फ्रेश वाटर इस्तेमाल करते हैं और कोई कंपनी कितना फ्रेश वाटर इस्तेमाल करते हैं और कोई भी सामान बनते वक्त पानी का कितना मात्रा इस्तेमाल किया जाता है और अगर हम उस फ्रेश वाटर को कैलकुलेट करके देखें तो उस सामान का दाम कितना होना चाहिए। ये सभी चीज़ यहाँ हमें एक क्वेश्चन किया गया है जिसका हमें आंसर अपने आप से बनाना है। ओके, तो उसके बाद हमें दरअसल यहाँ फ्रेश वाटर और पोल्यूटेड वाटर दोनों के बारे में डिस्कस किया गया है और हमें वैसे फ्रेश वाटर हो या पोल्यूटेड वाटर दोनों का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फ्रेश वाटर को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पोल्यूटेड वाटर ज़्यादा निकलेगा और पोल्यूटेड वाटर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा तो फ्रेश वाटर बहुत कम होगा। अगर पोल्यूटेड वाटर हम इस्तेमाल कम करेंगे तो धीरे धीरे उसके चलते वो समुंदर, वो नाला और वो साथ नदियाँ वो सारे भी उतना पोल्यूटेड नहीं होगा। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो फ्रेश वाटर और पोल्यूटेड वाटर दोनों का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए और सही तरह से सही ढंग से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हम आगे हमारे मुसीबत थोड़ा कम हो सकता है। अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री को अब ऐसा टूल्स, ऐसा गैजेट का निर्माण करना चाहिए जो कि पानी को कम इस्तेमाल कर सके और जिसके चलते हमारा फ्रेश वाटर या पोल्यूटेड वाटर दोनों कम हो सकता है, दोनों का मात्रा कम हो सकता है। और ऐसे स्ट्रैटेजीज अपनाना ज़रूरी है, ऐसे तकनीकी अपनाना ज़रूरी है जिसके चलते आगे हमारा फ्रेश वाटर भी बच सके और पोल्यूटेड वाटर भी थोड़ा कम हो सके। तो ऐसे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इन वाटर फुटप्रिंट या वाटर कंजर्वेशन के बारे में इस विषय पर काम करता रहता है और यह हमेशा चाहता है कि पानी को कम से कम इस्तेमाल किया जाए और फ्रेश वाटर या पोल्यूटेड वाटर दोनों को थोड़ा बचाया जा सके। और उसमें एक छोटा सा और दूसरा एक सिस्टम है जिसको कहते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट, LCA का काम क्या है कि इट इज़ टेलिंग अस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू नीड टू बी अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी, मेक वाइज चॉइस एंड डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूज ऑफ वाटर फॉर ऑल प्रोडक्ट दैट दे यूज़। तो यहाँ बता रहे कि हम सिटीज़न को, हम जो बाशिंदा को भी जागरूक होना चाहिए और हम उन चीज़ों को खरीदना चाहिए हमें जिसमें पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल बहुत कम होता है, तो हमें ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें पानी का इस्तेमाल कम हो। तो एक हम जिम्मेदार नागरिक होने के हेतु हमारा ये जिम्मेदारी बनता है कि हम फ्रेश वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके और फ्रेश वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा से कम कर सके। तो इस प्रकार से हम अपने आने वाले दिनों के लिए फ्रेश वाटर बचा सकते हैं और हम पूरे अपने परिवेश को गंदा भी नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक ठान के फ्रेश वाटर को बचाना चाहिए। तो पानी के फ्रेश वाटर के स्कैरसिटी को देखते हुए अंत में लिखा गया है, फ्रेश वाटर के स्कैरसिटी को देखते हुए कंपनी को भी ऐसे तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो। तो जिसके चलते हमारे आने वाले भविष्य में फ्रेश वाटर बचा रहे। तो इसी प्रकार से हम आने वाले दिनों के लिए अपने लिए, अपने भाई बहन के लिए या बेटी बेटी के लिए फ्यूचर में पानी फ्रेश वाटर बचा सकते हैं। नहीं तो इस प्रकार से कंटिन्यू कैसे जब पानी का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में शायद फ्रेश वाटर मिलना
मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमें पहले से इन चीज़ों में जागरूकता लाना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हमें अगर पानी को, फ्रेश वाटर को बचाना है और बढ़ाना है तो इसका एक और सॉल्यूशन है, हमें प्लांटेशन करना ज़रूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बी अवेयर योरसेल्फ एंड ट्राई टू कंजर्व द फ्रेश वाटर एंड डोंट spoil the water there everywhere, okay? And try to plant more and more trees for in your surrounding which can absorb water for you also, and it may help you and help your further upcoming uh, generation. Okay, this much for today. Thank you, my dear students. Hope to see you soon again. Bye, good night.